So, hello everyone. Today we'll start the ninth chapter of movements, that is accidental tourist. So, if we talk about this chapter, as the name suggests, accidental tourist. ठीक है? I hope you can get the idea. Many imaginations are running in your mind, right? So, यहाँ पे this is a case because many people say that traveling मतलब it's like कि the world, they say that the world today is a small place and traveling is become definitely has become easy, okay, but not everybody finds it easy to travel. मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं व्हेन दे पीपल आर ट्रैवलिंग तो उनके साथ में कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं दैट मेड दैट पर्सन्स ट्रैवलिंग थिंग डिफिकल्ट, ओके. So this chapter is all about that. Here the author reflects humorously his experiences as a traveler. So इस chapter में, as the name suggests, accidental tourist. So in this chapter the author here suggests his traveling experiences in a very humorous manner. Okay, so definitely I hope after reading this chapter you'll remember it in a very humorous way. और बहुत सारे places ऐसे हैं जहाँ पे you'll have a good laugh. Okay, so let's start with the chapter. Of all the things I'm not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. Okay, so he's saying कि of all the things, जितनी भी सारी चीज़ें हैं in which I'm not very good at, of all the things, ठीक है, and living in the real world is actually the most outstanding things, perhaps the most outstanding thing. How come it is the most outstanding thing? I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. So he here is saying कि it's like कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को, जिन चीज़ों को बहुत easily कर लेते हैं बिना किसी difficulty के कर लेते हैं, तो I definitely मैं जो है उन सारी चीज़ों में मेरे को definitely थोड़ी सी problem आती है, या मैं कई बार जब ये चीज़ें सोचने बैठता हूँ तो I was in a shocked situation. I felt wonder कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है जब दूसरे लोग जो है वो उनको बहुत easily कर लेते हैं. Okay. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for a lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in an alley on the wrong side of the self-locking door. Now he here is saying कि मेरे साथ में क्या होता है, देखे जिस तरीके से उसने बोला था कि जो चीज़ें लोगों के लिए बहुत ईजी हैं, इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है जनरली, तो मेरा बैड लक है कि मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हो जाती है. तो ही इज़ गिविंग एन एग्जाम्पल. I cannot tell you the number of times I've gone looking for a lavatory. Lavatory is what? A washroom. ठीक है? So here he is saying it is what? A washroom. So he is saying कि कई बारी मेरे साथ में ऐसा होता है कि मैं I am searching for a lavatory in a cinema and for instance and ended up standing in an alley. Alley is what? The passage. ठीक है, जो हम corridor sort of define करते हैं. तो मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं movies देखने जाता हूँ या cinema पे जाता हूँ, तो वहाँ पे I was looking for a lavatory and I ended up standing in an alley. ठीक है, मतलब in a passage, in a corridor and on the wrong side of the self locking door. मतलब मेरे साथ में क्या चीज़ हो जाती है कि I went to मतलब I went for looking for a lavatory and I was standing in a corridor, और जहाँ पे on the other side of the self locking door, यानी वो जो locking door है, इट्स लाइक कि वो डोर लॉक हो जाता है और मैं दूसरी साइड खड़ा हुआ होता हूँ. तो मेरा जो बैड लक है वो इतना बुरा है, मतलब मेरा जो लक है वो इतना बुरा है, तो इसीलिए मैंने यूज़ किया बैड लक इतना बुरा है, बिकॉज मैं आई एम रियली filled with these things. My particular speciality now is returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. और मेरी जो स्पेशलिटी है, जो मेरे साथ अक्सर होता है, वो क्या है कि मैं 2 या 3 बार रिसेप्शन पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके ये चीज़ पूछ रहा होता हूँ कि मेरा होटल रूम जो है वो कौन सा है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता हूँ उस सारी चीज़ों में. ठीक है, नेक्स्ट ही इज सेइंग I was thinking about this the last time we went and family on a big trip. ठीक है, now he was saying कि I was thinking about it जब मैं last time मेरी पूरी family के साथ में गया था. And family is what? With my whole family. ठीक है, so when I went with my whole family on a trip, it was Easter
एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक. ठीक है, इट वॉज द टाइम ऑफ ईस्टर और मैं पूरे फैमिली के साथ में एक हफ्ते के लिए इंग्लैंड जा रहा होता हूँ. It was, when we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. ठीक है. Now, when we arrived at Logan Airport, Boston में जब हम Logan Airport पे लैंड करते हैं, तब मुझे सडनली एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि मैंने ब्रिटिश एयरवे के एक फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम जो है उसके लिए रजिस्टर कर रखा है. फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम एज एन, कई बार जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, तो हमें पासेस मिल जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन कर रखी है कि मेरे को एकदम से याद आता है कि मैंने ब्रिटिश एयरवेज के जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है उसके लिए रजिस्टर कर रखा है. दैट मीन्स मुझे डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्काउंट मिलेगा या कोई ना कोई पॉइंट्स मिलेंगे, राइट. तो आई रिमेंबर्ड इट एट द एंड टाइम. ठीक है, आई वॉज रिमेंबर्ड that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck and here's where the trouble started. और सडनली मुझे ये रियलाइज़ होता है कि वो जो मेरा कार्ड है जिसको हम नॉर्मली पास बोलते हैं, तो मेरा जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का जो मेरा जो कार्ड है वो मैंने मेरे कैरी ऑन बैग जो है उसमें रखा है, जो मेरे नेक, मतलब इट्स लाइक कि जो डफल बैग सॉर्ट ऑफ होते हैं, ठीक है, जो आप नेक का अराउंड साइड बैग्स जो होते हैं उस पर रखते हैं, इस तरीके से हैंग करते हैं, तो वो मैंने अराउंड माई नेक लटका रखा है. एंड हेयर वेयर द ट्रबल स्टार्टेड. और यहाँ जाके सारी जो ट्रबल है वो स्टार्ट होती है. एक्चुअली होता क्या है, द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, सो आई पुल्ड ऑन इट एंड yanked at it with grunts and frowns and increasing consternation. Now the trouble started like this कि सबसे पहले तो बैग की जो जिप होती है वो जैम हो जाती है. ठीक है, मतलब वो खुल नहीं रही होती है, राइट. सो आई पुल्ड इट एंड yanked it. तो मैं बहुत कोशिश कर रहा होता हूँ. हमारे साथ में भी ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि अगर कोई बैग का जिप जो है वो अटक गया है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, राइट, उसको खोलने की, कैसे ना कैसे करने की. विद ग्रंट्स एंड फ्राउन्स, विद ग्रंट्स एंड फ्राउन्स एज एन, ग्रंट्स एज एन, जैसे हम डिफाइन करते हैं ना कि खुल नहीं रही है. फ्राउन्स आर व्हाट, योर एक्सप्रेशन, योर आईब्रो एक्सप्रेशंस. जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तो आप ऑलरेडी, अगर आप जस्ट सपोज यू आर जस्ट ट्राइंग टू ओपन अ जिप ऑफ अ बैग विच इज नॉट गेटिंग ओपन, right? So what happened, this would be your facial expression if you're trying to open it, right? And increase consternation. और again मेरे दिमाग में बहुत सारी, मतलब इट्स लाइक कि क्यों नहीं खुल रहा है, ये बहुत टेंशन वाली चीज़ की कैसे ना कैसे करके मुझे ये ओपन करना है. I kept this up for some minutes but it wouldn't budge. So I pulled harder and harder with more grunts. तो it's like I kept doing this for some time, लेकिन ये नहीं खुल रही होती है. It is not getting open. Then again I was trying it harder and harder with more grunts and frowns. ठीक है. Next is, well, यू कैन गेस वॉट हैपन. अब डेफिनेटली आप ये चीज़ डिफाइन कर सकते हो कि क्या हुआ होगा जब आप कोई जिप जो है वो जैम हो गई, उसको खोलने की कोशिश कर रहे हो. एट लास्ट में क्या होता है कि या तो वो जिप टूट जाएगी, है ना, या फिर मतलब इट्स लाइक कि वो तो या तो आपका वो जिप का जो बकल है वो हाथ में आ जाएगा, या फिर वो जिप पूरा ही खराब हो जाता है, राइट. तो इट हैपन, राइट. अब्रप्टली द जिप गेव अवे, राइट, वो जो है वो खराब हो जाती है. The side of the bag flew open and everything within newspaper cuttings and other loose papers, 14 ounce of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film was extravagantly ejected over. ठीक है, obviously it happened, जैसा जनरली होता है वैसा ही मेरे साथ भी होता है. The zip gave way, वो बिल्कुल खराब हो जाती है, खुल जाती है, और बैग में जो भी सारी चीज़ होती है वो ऐसे बाहर ऊज आउट हो रही होती है, राइट. चाहे वो न्यूज़पेपर कटिंग्स हो, चाहे कोई दूसरे लूज पेपर्स हो. 14 ounce ऑफ टिन पाइप टबैको. टिन 14 ounce इज व्हाट, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो डिफाइन कर रखी है. ठीक है, जो मेरा जो टबैको पाइप का जो टिन होता है, ठीक है, छोटा सा जो टिन होता है वो बाहर आ जाता है. मैगजीन, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, फिल्म, वो जो भी चीज़ें होती है, इट्स एक्स्ट्रावेगेंटली. एक्स्ट्रावेगेंटली का बेसिक मीनिंग होता है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो पर्सन बहुत ज्यादा खर्चीला है, ऐसे होता है. यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंटली यानी इट ऊज आउट लाइक कि जैसे बारिश हो रही है वैसे सारी चीजें जो है वो बाहर आने लग जाती है. ओके, नेक्स्ट इज इट इजेक्टेड ओवर एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट. ठीक है, तो वहां पे ये देखो, यू कैन सी दिस इन अ पिक्चर, लेट मी जस्ट शो यू.
यू कैन सी दिस इन अ पिक्चर कि वो बैग को खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन जिप जो है वो खराब हो गई है, तो सारी चीजें जो है वो ऐसे बाहर फ्लडेड होके गिर रही है, ठीक है। सो इट एक्स्ट्रावेगेंटली इजेक्टेड एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, मतलब वो जितना एरिया होता है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, राइट, जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इतना जहाँ पे भी एरिया होता है वो सारी जगह फैल जाती है। अब जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे टिन बॉक्स है वो इधर उधर लुढ़क के इधर चला जाएगा, तो वो चीज डिफाइन कर रखी है, ओके। I watched dumbstruck as 100 careful sorted documents came raining down in a fluttery cascade. Coin bounced to a variety of noisy oblivions, and the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its content as it went. ठीक है? Now actually what happened? I was watching dumbstruck. Dumbstruck यानी मैं बिल्कुल शॉक्ड होके वहां पे देख रहा हूं, ओके। सो यस, I watched dumbstruck as the 100 careful sorted documents, मतलब मैं बिल्कुल शॉक्ड, मेरे आपके साथ में ऐसा होता है कोई सी भी चीज अगर एकदम से गिर जाती है तो आप कैसे देख रहे होते हो, ओ पोजीशन में, राइट। तो मैं बिल्कुल शॉक्ड होके उस चीज की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो बाकी सारी चीजें हैं, जो भी सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में थे या जो भी चीजें मैंने केयरफुली रख रखी थी, वो सारी चीजें दोज आर रेनिंग डाउन इन अ फ्लटरी कास्केड। कास्केड इज व्हाट? अ वाटरफॉल, ठीक है। तो कास्केड बेसिकली अ वाटरफॉल, तो जिस तरीके से एक वाटरफॉल में से पानी गिर रहा होता है ना, वैसे ही वो सारी चीजें जो है इट रेनिंग लाइक अ कास्केड। कॉइन्स बाउंस टू अ वेराइटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिवियंस, जो भी वहां उसमें कॉइन्स होते हैं वो बाउंस होकर जो ऑब्लिवियंस, जो आवाज आ रही होती है, ठीक है, जैसे अगर आपने कॉइन्स को गिरते हुए, मतलब कॉइन्स डेफिनेटली गिरे होंगे आपके सामने, तो वो जैसे बाउंस होकर इधर उधर चले जाते हैं, वैसा उनके साथ में हो रहा होता है। एंड द नाउ लिडलेस टिन ऑफ टबैको, जो उसने बोला था कि टबैको का मेरे पास में एक टिन होता है 14 आउंस ऑफ टिन, ठीक है। अब सिंस वो नीचे गिर जाता है तो इट वाज लिडलेस, उसका जो कैप है वो इधर उधर हो जाता है। नाउ द लिडलेस टिन ऑफ टबैको रोल्ड क्रेजीली अक्रॉस द कॉनकॉर्ड्स, डिसगॉर्जिंग इट्स कंटेंट्स एज इट वेंट, और वो क्या होता है, वो रोल होकर, ठीक है, इट वेंट क्रेजीली हेयर एंड देयर, और उसके जो अंदर के कंटेंट्स होते हैं वो इधर उधर फैल गए होते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि एक्चुअली हुआ क्या होगा, सारी चीजें जो है वो गिर गई होती है, ठीक है। लिडलेस टोबैको बॉक्स जो है, मतलब इट्स लाइक टोबैको का जो टिन होता है, अब उसका कैप रिमूव हो गया है तो वो भी रोल डाउन होकर इधर उधर जा रहा है, उसके अंदर के जो सारे कंटेंट्स है वो फैल गए हैं, मतलब उसमें जो टोबैको है वो सारा फैल गया है, ओके। नेक्स्ट इज my tobacco, I cried in horror, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England, ठीक है। Now he was saying कि definitely जैसे वो देखते हैं ना, oh my tobacco, ठीक है, बिकॉज उसके दिमाग में ये चीज आ रही होती है कि अरे ये तो सारा फैल गया, ये तो सारा खराब हो गया, अब मुझे कितना पे करना पड़ेगा इसके लिए इंग्लैंड में। डेफिनेटली वो ये सोच रहा है कि जैसे अभी आप अगर बात करते हो, नॉर्मली यू आर इन इंडिया, ठीक है, आपने सपोज वो 50 रुपीज में खरीदा है, राइट, और अगर आप कोई चीज बाहर जाते हो वो खराब हो गई तो आपको वही चीज डेफिनेटली वहां के पाउंड के अकॉर्डिंग, मतलब डेफिनेटली वहां का जो भी करेंसी है उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट डेफिनेटली द डबल ट्रिपल प्राइस वट एवर इट इज। तो ही इज सेइंग कि ओ अब मेरे को कितना पे करना पड़ेगा इंग्लैंड में इस चीज के लिए, एंड नाउ दैट अनदर बजट हैड कम, और इस वजह से चलो और खर्चा हो गया, उसके दिमाग में यही चीजें चल रही होती हैं। and gone and then changed up the cry to my finger, और वो सारी चीजें मेरे दिमाग में इनिशियली ये थॉट आता है कि अरे सारा टबैको फैल गया, अब मेरे को कितना पे करना पड़ेगा, वो थॉट जाता है कि दूसरा थॉट कहाँ पे मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ चेंज हो जाता है, my finger, ठीक है। as I discovered that I had gashed my finger on the zip and was shedding blood in lavish manner, so he said that कि as I discovered कि it's like कि जो zip है उससे I cut my finger, I had a cut on my finger and I was definitely, it was shedding blood, ठीक है, वहाँ से blood जो है वो flow हो रहा होता है in a very lavish manner as in बहुत ज़्यादा blood जो है वो ooze out हो रहा है, बहुत ज़्यादा blood flow हो रहा है। तो डेफिनेटली उस चीज को देखकर मतलब लैविश मैनर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही ब्लड ooze आउट हो रहा है, लेकिन अगर हल्का सा भी ब्लड है तो आपको ऐसा लगता है ना, ओ मेरे लग गई, ठीक है। I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well,
I think hysterics are fully justified. तो he said lavish manner, जैसे उसने बोला कि बड़ी decent तरीके से flow हो रहा है, right? Now he is saying this and he is specifying that कि I am not very good at flowing blood. ठीक है, बट अगर मेरा खुद का खून जो है वो फ्लो हो रहा है तो मेरी जो हिस्टेरिक्स है, हिस्टेरिक्स यानी जो मेरे रिएक्शंस होते हैं, ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं हम, अगर हल्का सा भी चोट लगा है, हल्का सा भी ब्लड लगा है, अरे भी को लग गई, ऐसे वाला चीज, ठीक है, तो मेरी जो रिएक्शंस होते हैं दोज आर फुल्ली जस्टिफाइड. ओके. Confused and unable to help, my hair went into panic mode. और definitely I was very confused, I was unable to understand what is going on. सबसे पहले तो क्या होता है कि मैं अपना जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का कार्ड है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. जब मैं ढूंढ रहा होता हूँ तो जिप जो है वो नहीं खुल रही होती है, फाइनली वो टूट जाती है और सारी चीज़ें बाहर गिरने लग जाती है. देन माई रिएक्शन चेंज टू माई टबैको. ठीक है, देन माई रिएक्शन चेंज मतलब रिएक्शन चेंज टू माई फिंगर एज इन माई ब्लड इज फ्लोइंग. तो ही वॉज सेइंग दिस कि मैं इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि माई हेयर वेंट इन टू पैनिक मोड. मतलब मैं बिल्कुल, ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत परेशान है तो आप उसकी जो अपीयरेंस है वो डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज आई वॉज एट दिस पॉइंट दैट my wife looked at me with an expression of wonder, not anger, not or exasperation, but just simple wonder, and said, I can't believe you do this for a living. ठीक है, और फिर क्या होता है कि इस पॉइंट पे मेरी जो नजरें हैं वो मेरी वाइफ की तरफ जाती है और मुझे ऐसे देख रही होती है कि इट्स लाइक कि उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं दोज आर ऑफ वंडर. ना तो उसको गुस्सा आ रहा है, ना ही वो इरिटेट हो रही है. ठीक है, उसके जो उसके जो एक्सप्रेशंस है दोज ऑफ वंडर. आई कांट बिलीव तुम ऐसा करते हो. कई बार ऐसा होता है, हम अगर मार्केट में जा रहे हैं, हमारे साथ में कोई पर्सन है जो ऐसी हरकतें कर देता है तो हम कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ये मेरे साथ नहीं है, क्योंकि आपको एम्बैरसमेंट हो रही होती है. वैसे उसकी वाइफ के साथ भी हो रहा होता है. ठीक है, बट आई एम अफ्रेड इट्स सो. बट आई एम अफ्रेड कि हाँ, जैसा वो कह रही है इट इज ट्रू, बिकॉज मेरे साथ में अक्सर ऐसा होता रहता है. I always have catastrophes when I travel. I always have disasters. Catastrophes are what? Disasters. तो ही इज सेइंग कि आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफे व्हेन आई ट्रैवल. जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ मेरे साथ में ऐसी सारी चीजें होती रहती हैं. वंस ऑन एन एयरप्लेन I leaned over to tie a shoelace. Just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back in a full recline. अब he was defining one more incident. कि एक बार क्या होता है, when I was traveling in an aeroplane, तो मैं आगे की तरफ झुकता हूँ अपनी शूलेस बांधने के लिए, और मेरे सामने जो पर्सन बैठा होता है, मतलब मेरे आगे वाली सीट पे जो पर्सन बैठा होता है, he threw his seat back in full recline. वो बिल्कुल अपनी जो सीट है वो पीछे रिक्लाइन कर देता है. अब सोचो मेरी सिचुएशन क्या होगी. And found myself pinned helplessly in the crash position. ठीक है, तो मेरे साथ में यही चीज होता है कि क्योंकि मैं नीचे झुका हुआ हूँ अपनी शूलेस बांधने के लिए, और वो पर्सन जो है उसने अपनी सीट पूरी रिक्लाइन मोड में कर दी है, तो आई वॉज इन अ क्रैश पोजिशन. मैं बिल्कुल दब जाता हूँ. ठीक है, It was only by clawing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed. और मैं फ्री कैसे होता हूँ, मतलब मैं कैसे बचता हूँ कि मेरे पास में जो पर्सन बैठा होता है सिर्फ उसका पैर पकड़ करके प्लीज हेल्प मी आउट, ताकि आप सामने वाले पर्सन को बता सको. देन आई वॉज एबल टू फ्री माई सेल्फ अप. ठीक है, नेक्स्ट इज on another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. Now he is explaining one more incident, क्योंकि वो बोलता है कि जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ इस तरीके की चीजें मेरे साथ में होती रहती है, डिजास्टर्स. तो एक बारी तो वो शूलेस वाला इंसिडेंट होता है. एक बारी क्या होता है कि I knocked a soft drink onto the lap of a sweet lady that was sitting beside me. मेरे पास में एक लेडी बैठी हुई होती है और एक्सीडेंटली मैं सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो उसके ऊपर गिरा देता हूँ. ठीक है, The flight attendant came and cleaned her up and brought me a replacement drink, and instantly I knocked it onto the woman again. जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है, मतलब जो एयर हॉस्टेस होती है, वो मेरे लिए फाइनली वो उस लेडी को क्लीन अप करती है, उसके ऊपर से मतलब सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हटाती है वो, और मेरे लिए एक रिप्लेसमेंट ड्रिंक लेकर आती है. लेकिन माई बैड लक, आई नॉक्ड इट अगेन. आई नॉक्ड इट ऑन टू द सेम वुमेन अगेन. तो सोचो कितनी इरिटेट हो गई होगी वो. टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ.
I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with the name The Undead Limp, violently swept the drink from its perch and onto her lap. ना वो मुझे बोलता है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसा हुआ, मतलब मैं तो सिर्फ अपना हाथ बढ़ाता हूँ ड्रिंक को लेने के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि कोई फोर्स, जैसे आप हॉरर मूवीज में देखते हो कि कोई इनविजिबल फोर्स जो है वो आपके हाथ को ऐसे कर दे रहा है, तो मेरे साथ में भी ऐसा ही हो रहा होता है कि आई जस्ट रिमेंबर कि मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ ड्रिंक को लेने के लिए एंड हेल्पलेसली मेरा जो आर्म है वो अपने आप ही ऐसे हो जाता है और उसके ऊपर ड्रिंक जो है वो गिर जाती है. ठीक है. The lady looked at me with stupefied expressions you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched and uttered an oath that started with O, finished with sake. ठीक है. Now he was saying वो जो लेडी होती है वो मुझे बड़े गंदे एक्सप्रेशंस के साथ में देख रही होती है, गुस्से भरे एक्सप्रेशंस. ठीक है. एंग्री एक्सप्रेशंस के साथ में देख रही होती है. ठीक है. और डेफिनेटली आप इमेजिन कर सकते हो कि जिस लेडी को आपने ट्वाइस ड्रेंच यानी भिगो दिया है. ठीक है. सो उसको 2 बारी आपने भिगो दिया है या उसकी ड्रेस जो है वो खराब कर दी है, तो शी जस्ट अटर्ड सम वर्ड्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोल रही है. इट स्टार्टेड विद ओ, फिनिश्ड विद सेक. ठीक है. उसकी जो स्पीच होती है, मतलब वो जो मुझे बड़बड़ा रही होती है, मेरे को डेफिनेटली वो गालियां ही दे रही होगी, तो जो बड़बड़ा रही होती है उसमें इट स्टार्टेड विद ओ, इट फिनिश्ड विद सेक एंड इन बिटवीन हैड सम वर्ड्स दैट आई हैव नेवर हर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, certainly not by a nun. ठीक है. So he is saying कि definitely that speech started with O, it ended with sake, और उसके बीच में जो words होते हैं वो definitely ऐसे होते हैं जो कभी भी publicly बोले नहीं जाते. ठीक है. और definitely by a nun as in definitely not from a lady, आप expect नहीं कर सकते. Okay. Next is, this however was not my worst experience on the plane flight. The worst experience was when I was writing important thoughts. Now he was before doing that, you can just have a look at the picture. This is the flight attendant, this is the author, this is the lady, और वो author जो है अपनी drink लेने के लिए जाता है and it like just spilled over the lady's dress. ठीक है. Next is, this however was not my worst experience on a plane flight. Now he was saying कि ये सबसे बुरा experience नहीं होता मेरा एक plane flight पे, definitely उससे भी बुरे हैं. उससे बुरे क्या हैं? My worst experience was when I was writing important thoughts in my notebook by socks, clutched rings carefully, sucking thoughtfully on the end of my pen as you do. ठीक है. मेरा जो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो ये होता है कि एक बारी मैं अपनी, मतलब व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन अ फ्लाइट और मैं अपनी नोटबुक में कुछ नोट्स बना रहा था. ठीक है. इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहा था, सॉक्स लेने हैं, यू नीड टू क्लच द ड्रिंक्स केयरफुली, क्योंकि मेरे साथ में पहले ऐसा हो चुका था. एंड आई वॉज जस्ट थॉटफुली चूइंग द एंड ऑफ माई पेन. कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की हैबिट होती है, कुछ लिख रहे होते हैं, सोचते सोचते पेन का जो बैग होता है, पेंसिल का जो बैग होता है, वो मुंह में रख लेते हैं, खाने लगते हैं. ठीक है. उसके साथ में भी ऐसा ही होता है. And fell into conversation with an attractive young lady in the next seat. और ये चीज करते करते, मतलब मेरे साथ में जो एक लेडी बैठी हुई होती है उससे बात करने लगता हूँ मैं. ठीक है. I amused her for perhaps 20 minutes with a scattering of urbane bon mots. ठीक है. Then retired to the lavatory where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now a striking scrub resistant navy blue and would remain so for several days. ठीक है. So while I was making my notes, I was just sucking the end of my pen. ठीक है. और मेरे पास में जो लेडी बैठी होती है मैं उससे बात करने लग जाता हूँ. ठीक है. I amused her for almost 20 minutes. Amused her as in I talked her for almost 20 minutes with the scattering urbane bon mots. Bon mots are the remarks. ठीक है. नॉर्मली बेसिकली क्या होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने इतने अच्छी तरीके से बात करी है. ठीक है. तो वेरी सिविलाइज्ड बॉन मॉट्स, वेरी सिविलाइज्ड रिमार्क्स, मैं जिस तरीके से उससे बात कर रहा होता हूँ. देन आई रिटायर्ड टू द वॉशरूम, देन आई रिटायर्ड टू द लेवेटरी, देन आई वेंट टू द वॉशरूम. और जैसे ही मैं वॉशरूम में जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ सामने मिरर में कि मेरा जो पेन है वो लीक हो गया था. एंड चिन, माउथ, टीथ,
गम सब जगह पे जो स्ट्राइकिंग स्क्रब रेजिस्टेंट एंड विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली. नेवी ब्लू इंक जो है वो मेरे पूरे माउथ पे लगी हुई होती है, ठीक है. एंड इट रिमेन एज फॉर लाइक दैट फॉर सम सेवरल डेज ऑल्सो, राइट. सो ही वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड कि वॉट वुड द लेडी वुड थॉट ऑफ हर, कि मैं बहुत अरबेन तरीके से, बहुत सिविलाइज तरीके से उस लेडी से बात कर रहा हूँ, बट I have a very funny face in front of the lady was probably laughing at me, right? Next is, so you will understand, I trust when I tell you how much I ache to be swave. So he is saying कि I trust when I was, मतलब it's like कि when I tell you, जब भी मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि when I ache to be swave यानी जब भी मैं बहुत ज़्यादा civilized, मैनर्ड, वेल मैनर्ड, या फिर कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल सी रहे, वैसा मेरे साथ में होता नहीं. कि मैं कितना कोशिश करता हूँ, मैं कितना मरता हूँ इस चीज़ के लिए कि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है. I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event. ठीक है, I would love, मैं डेफिनेटली, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मेरे साथ में ऐसा हो कि मैं किसी डिनर टेबल से उठ रहा हूँ, ठीक है, और कोई मैं सीस्मिक इवेंट यानी कोई भी डिजास्ट्रस सिचुएशन जो है वो फेस ना करूँ, ठीक है. आई वुड लव टू डू दैट, आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दैट, लेकिन ऐसा मेरे साथ में जनरली होता ही नहीं है, ठीक है. Get in a car and close the door without leaving 14 inches of coat outside. I would love to get in a car और without realizing कि मेरा जो कोट है वो बाहर कार डोर जो है उसमें आ गया है. ऐसा मेरे साथ में जनरली होता है, तो आई वुड लव कि ऐसा ना हो, ठीक है. Second, next is wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil, but it is not to be. I would love to wear light colored trousers और मैं कहीं पे भी बैठूं लेकिन वहाँ पे chewing gum पे ना बैठ जाऊं, आइसक्रीम पे ना गिर जाए, कफ सिरप या फिर मोटर ऑयल. ऐसा मैं बहुत चाहता हूँ कि मेरे साथ में प्लीज ऐसी नॉर्मल चीजें हो जैसे नॉर्मल लोगों के साथ में होती है, बट इट इज नॉट टू बी. बट द सैड पार्ट इज मेरे साथ ऐसा नहीं होता. जब भी मैं, मतलब इट्स लाइक कि जब भी मैं डिनर टेबल से उठता हूँ तो कुछ ना कुछ गिरा हुआ होता है. मैं जब कार में बैठ रहा होता हूँ तो मेरा कोट जो है वो उसमें आ जाता है, तो उस वजह से ग्रीस वगैरह वहाँ पे लग जाती है. जब भी मैं लाइट कलर ट्राउजर्स पहनता हूँ तो उस पर कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो ये चीज़ मेरे साथ में होती ही रहती है, ठीक है. Next is, now on planes when the food is delivered, he is explaining कि उसका मतलब वो कितना his life is full of bad luck. The narrator here is explaining. Now on planes when the food is delivered, my wife says take the lids off the food for daddy and put your hoods up children, daddy is about to cut this meat. अब अगर कभी भी, मतलब it's like now on the plane, if I talk about when I am in the plane, ठीक है, प्रेजेंट सिनारियो. तो जब फूड जो है वो डिलीवर होता है तो मेरी वाइफ जो है वो मेरे बच्चों से कहती है कि टेक द लिड्स ऑफ फॉर डैडी, ठीक है, वो जो लिड्स हैं प्लीज डैडी के लिए रिमूव कर दो क्योंकि ये अगर करेंगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा. या फिर पुट योर हुड्स अप, अपनी जो कैप्स है, अपने जो हुड्स है वो पहन लो बिकॉज डैडी इज अबाउट टू कट मीट. क्या पता इतना बुरा लक है कि क्या पता वो कट कर रहा हो और उछल के तुम्हारे मुंह पे लग जाए या ऐसे. तो वो मेरी वाइफ मेरे बच्चों से कह रही होती है. Of course, this is only when I am flying with my family. Of course, he is saying, ये सिर्फ इस तभी होता है when I am flying with my family. Because when I am not flying with my family, when I am not on my own, मतलब it's like when I am on my own, I don't eat, drink, or lean over to tie my shoelaces. Never put a pen anywhere near my mouth. जब मैं अकेला ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो ना तो मैं कोई चीज़ खाता हूँ, ठीक है. आई नेवर ईट, आई नेवर ड्रिंक. मैं कभी भी शू लेसेस बांधने के लिए नीचे नहीं झुकता बिकॉज पहले जैसा सिचुएशन हो जाए. कभी भी मैं पेन जो है वो अपने माउथ के पास में भी नहीं लेकर आता हूँ. आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली, समटाइम्स ऑन माई हैंड्स टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्चीज. ठीक है, मैं बहुत बहुत क्वाइटली बैठता हूँ. कई बार अपने हैंड्स पे ऐसा होता है ना कि आप अपने हैंड्स पे पैर रखकर बैठ जाते हो ताकि मेरे हैंड्स जो है वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ लिक्विड मिस्चीफ ना कर दें. लिक्विड मिस्चीफ एज इन जैसा हुआ था कि मेरे हाथ टक से जो ग्लास है वो टकराया था और ले पास वाली लेडी के ऊपर गिर गया था. ठीक है, इट्स नॉट मच फन बट इट डज एट लीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स. ठीक है, इट इज नॉट डेफिनेटली मच फन बट एक्चुअली मेरे लॉन्ड्री बिल्स जो है उसमें तो थोड़ा सा मुझे फायदा हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज
I never did get my frequent flyer miles. By the way, now he is saying, अब अगेन हम यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसको वो कार्ड नहीं मिल रहा होता है एंड ऑल, तो वो ये बोलता है कि जब फाइनली कि मेरे को कभी भी मेरे जो फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स हैं वो मिले नहीं, मतलब जितना आपने ट्रैवल कर लिया है उतना जो माइल्स हैं वो आपके कार्ड में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं मिले हैं मुझे. आई नेवर डू, आई कुडंट फाइंड द कार्ड इन टाइम, मेरे को कभी भी नहीं मिले. क्यों? क्योंकि या तो ऐसा होता है कि मुझे मेरा जो कार्ड है वो टाइम पे मिलता नहीं है. दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, और ये चीज़ जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन बन चुकी है. Everyone I know, like everyone, is forever flying off to Bali first class with their air miles. ठीक है, तो everyone I know, जिसको भी मैं जानता हूँ वो बाली ट्रैवल कर रहे हैं in the first class with their air miles, because ऐसा होता है ना कि अगर आपने इतना ट्रैवल कर लिया है तो उसके ऊपर आपको एक टूर जो है या एक मतलब एक फ्लाइट जो है वो फ्री मिल रही है ऐसा. तो ही इज सेइंग दिस कि मैं जिसको भी जानता हूँ उन्होंने अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर मतलब माइल्स जो है माइल्स जो है वो ऐड करवा रखे हैं पॉइंट्स की तरह, और उनको ये चांस मिल चुका है. ठीक है, आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग, और मैं मतलब मेरे को चांस ही नहीं मिला मैं कि मैं कोई भी माइल्स जो है वो कलेक्ट कर पाऊँ. आई मस्ट फ्लाई 100,000 miles a year, yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines. Now I must travel actually 1 lakh miles. अभी तक actually मेरे पास में 1 lakh miles हो जाने चाहिए थे, ठीक है, but the thing is मेरे पास में presently है कितने 212 air miles, और वो भी कितने में 23 एयरलाइंस के बीच में, मतलब मैंने 23 बार ही ट्रैवल किया है. मेरे को इतना 100,000 कलेक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस कभी कार्ड नहीं मिल रहा है, कभी कोई और इशू हो जा रहा है, उस वजह से प्रेजेंटली मेरे पास में सिर्फ 212 एयर माइल्स है. ठीक है, सो दिस इज अगेन अ फ्रस्ट्रेशन फॉर हिम. नेक्स्ट इज दिस इज बिकॉज ईदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स when I check in, or I remember to ask for them but the airline then manages not to record them, or the check-in clerk informs me that I am not entitled to them. और ऐसा क्यों होता है? या तो कभी मुझे कार्ड नहीं मिल रहा होता, या फिर either I forgot to ask them for the miles. जब मैं ट्रैवल कर लेता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ उनसे माइल्स के बारे में बात करने के लिए, ठीक है, मेरा चेक इन. और अगर मुझे याद रहता है तो जो एयरलाइन होती है वो मतलब इट्स लाइक कि देन मैनेज नॉट टू रिकॉर्ड देम. कई बार ऐसा होता है कि नहीं सर ये वाले माइल्स हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है मेरे साथ में. और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स मी, या फिर चेक इन क्लर्क्स जो है वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम बिकॉज मतलब आई एम नॉट सूटेबल फॉर देम, और आई एम नॉट एंटाइटल्ड फॉर दीज एयर माइल्स. ओके, इन जनवरी ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, a flight for which I was going to get about a zillion air miles. ठीक है, नाउ एक बार की बात है, इन जनवरी व्हेन आई वाज फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया, और बहुत लंबा फ्लाइट होता है तो मेरे पास में करीबन जिलियंस ऑफ मतलब काफ़ी सारे एयर माइल्स कलेक्ट हो जाने चाहिए थे. द क्लर्क shook her head when I presented my card and told me I was not entitled to any. ठीक है, जो चेक इन क्लर्क होता है वो जब मेरा कार्ड देखता है तो he just shook her head, और she just shook her head, and वो मुझे ये चीज़ डिफाइन करता है कि आई एम नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी, मतलब मैं इन माइल्स के लिए सूटेबल नहीं हूँ, ये मेरे उसमें रजिस्टर्ड नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? बिकॉज वाई? बिकॉज द टिकट इज इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन. तो वो बोलता है वो इसलिए नहीं हो रहे होते हैं, वो इसलिए काउंट नहीं हो रहे होते हैं बिकॉज मेरा जो टिकट होता है वो बी ब्राइसन के नाम से होता है, और जो कार्ड बना हुआ होता है उस पर डब्ल्यू ब्राइसन लिखा हुआ होता है. ठीक है, तो मतलब देयर इज अ मिसमैच इन द नेम. आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम, बट शी वुडंट हैव इट. मैं उसको ये भी रिलेशन बता देता हूँ कि बिल और विलियम के बीच में क्या रिलेशन है, क्यों यहाँ पे बिल और डब्ल्यू विलियम लिखा हुआ है, बट नो, शी वुडंट हैव इट. So I didn't get my air miles and I won't be flying to Bali first class just yet. तो मुझे अभी तक मेरे air miles नहीं मिले हैं, और मैं फर्स्ट क्लास में बाली भी ट्रैवल नहीं कर पाया हूँ अभी तक, या नहीं कर रहा हूँ. Perhaps just as well really I could never go that long without eating. और चलो अपने आप को शांति देने के लिए, अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने के लिए बताइए कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इतना लंबा जो ट्रैवल है वो बिना खाए नहीं कर सकता. ठीक है, so that's all the chapter all about.
Now I hope you can understand why the chapter's name is Accidental Tourist, because the author here, the narrator here, is defined as a tourist. He's traveling here and there, but every time some accident came up. ठीक है, उसके साथ में हमेशा जब भी वो ट्रैवल कर रहा होता है उसके साथ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज हो ही जाती है. This is all about the chapter. Thank you.